ওয়েব রেপো সব তোমার আনচেঞ্জ 6.5। আমাদের ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ এই জন্য মার্কেট একদম ভুলে যাচ্ছে। আচ্ছা রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ দাদা। अच्छा चलो गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो चलो सर देखते हैं, काफी दिन बाद क्लास हो रहा है, मार्केट का सिचुएशन क्या है। 18,000 সে সমস্ত হাই ব্রেক করে চলে আসছে। 18,763। अच्छा ये इसमें इसमें तुम लोग कुछ लूटे कि नहीं लूटे? अरे मार्केट जिस तरह से लास्ट 14-15 डेज से मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, तुम लोगों ने कुछ इसका फायदा उठा पाया किसी ने? खाना तो चाहिए सर। হ্যাঁ একদিন একদিন। না স্যার, ভয় हाँ? ভয় তো ঢুকিনি স্যার। हाँ, बात करता है इतना 4 दिन सुंदर ग्रीन, हाँ 4 दिन গ্রিন ছিল, একদিন রেড হয়ে গেল 77। 4 दिन ग्रीन ছিল, একদিন রেড হয়ে গেছে। মার্কেট अच्छा मौका दिया तुम लोग। কালকে তো ইনস্টিটিউশনে বাই ছিল তো 1300 কোটি টাকা সামথিং দেখলাম। এফআইআই হ্যাঁ হ্যাঁ এফআইআই বাই ছিল, এই জন্য আরো মার্কেট আপ হয়েছে। ওই 3টের পর। মার্কেটটা দেখেই মনটা খুশি হয়, শরীর ভালো হয়ে গেল। আচ্ছা চলো মার্কেটের ব্যাপারে আরেকটু দেখি। আচ্ছা আমি যে স্টকগুলো বলেছিলাম সেগুলোর কি অবস্থা রে? সিম্ফনি বলেছিলাম, সিম্ফনির কি অবস্থা রে? স্যার কোন গেছে হ্যাঁ বলুন। আপ হয়েছে। হ্যাঁ বলুন পূর্বা। হ্যাঁ বলছি যে স্যার আমি এই কদিনে আপনার যে বেসিকের যে 18টা ক্লাস ছিল ওই 18টা ক্লাস কমপ্লিট করেছি, ঠিক আছে। বাহ, এবার আচ্ছা আমি তো আমার তো ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নেই, কিভাবে খুলতে হয় আমি জানিও না। এবার আচ্ছা। আমি তো আপনি যে চার্ট গুলো দেখাচ্ছেন ওই চার্ট গুলো তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো প্রথম দিকটা কিছু বুঝতেই পারছিলাম না। এই কদিনে পুরো বেসিকটা আর টেকনিক্যালের 10-12টা কাজ ওই ক্যান্ডেলস্টিক্স ওইগুলো সমস্ত দেখলাম, ওগুলো আচ্ছা, মোটামুটি বুঝেছি। এবার আমি তো আচ্ছা। ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটা আমার নেই, আমি এই চার্ট ফার্ট এগুলো কিছু বুঝতে পারছি না। এই একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি এবার বেসিকটা শেষ করেছি তো, এবার বেসিক মামা চুপ, এবার বেসিকের কি ইয়েটা মানে বেসিকের পরীক্ষাটা দেব, ঠিক আছে। একটা একটা করে পরীক্ষা দিতে দিতে যাই, নাহলে সবগুলো একসাথে দিলে তো আচ্ছা। তখন পারবো না। ঠিক এবার আছে করবো, আমি তোমাকে সাজেস্ট করছি, ঠিক আছে, আমি সাজেস্ট করছি, হ্যাঁ? আছে, আমি কিভাবে তাহলে কিভাবে কি করতে হবে আমি আমি বলে দেবো, আমি 2-1 দিনের মধ্যেই বলে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি কখন ফোন করবো আপনি সেটা বলে দেন। হ্যাঁ দুপুরের দিকে ফোন করবেন, আমি বলবো। ঠিক আছে, আমি তাহলে কাল পরশু না, কালকে ফোন করতে পারবো না, আমি পরশুদিন ফোন করবো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। কারণ কালকে আমার মেয়ের জন্মদিন, কাজে আমি থাকবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে আমি বলবো। আচ্ছা সিম্ফনি কতই বলেছিলাম কেমন ছিল? বেড়েছে তো রে? আমার ধারণা ছিল বাড়বে, অনেকদিন সাইডওয়েজ ছিল। আমি শরীর খারাপের আগে পর্যন্ত তো দেখেছিলাম সাইডওয়েজই ছিল। 850 ছিল, 850 এই তো 885 চলে গেছে, 86 900 ঢুকে গেছিল, দেখেছিস? বাহ, বেশ ভালোই পারফর্ম করেছে, অ্যাজাম্পশনটা ঠিক দিয়ে গেছে। আমি ইনভেস্ট করেছি দাদা। করেছিস? আরে বাহ, প্রফিটে আছিস তো তাহলে? প্রফিট করে আছিস তো নাকি রে? হ্যাঁ প্রফিট আছে, প্রফিট। আদানি শেয়ার গুলোর কি খবর রে? আদানি আমি কিছুই খেয়াল করতে পারছি না। আদানি কোনো সেইভাবে বাড়েনি, আদানি আবার ঠিকঠাক মতন চলছে। নর্মাল চলছে। হ্যাঁ স্যার, নর্মালে চলে এসছে। দুদিন যা হাই দিয়ে দিয়েছিল ব্যাস, তারপরে হয়ে গেছে আবার। স্বাভাবিক সেটাই। আর আইটি স্টক গুলো, আইটি স্টক গুলোর কি খবর? ডাউন হয়েছে আবার ডাউন হয়েছে, ভালো হবে। আইটি স্টক ইনফোসিস আবার পড়েছে। টিসিএস এ কি এখন ইনভেস্ট করা যাবে? দেখবো তারা দেখে বলবো। ইনফোসিসের কি হলো, আবার পড়ে গেল? 2 তারিখে তো আইটি স্টক কেন পড়লো, কি খবর আছে?
1300 থেকে আবার পড়ে গেল কেন? কি হয়েছে পিউষ? হ্যালো, সিসিএস এর ডিভিডেন্ড ছিল 2 তারিখে। ডিভিডেন্ড ছিল? আচ্ছা, ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছে, ডিক্লেয়ার করেছে না, তার জন্য হয়তো একটু গেছে। তো আবার বাড়বে, যারা নিতে পারিস নিয়ে নে, তারপর দেখে নিবি একটু, ঠিক আছে? এখানটা একটা মকা দেবে আমাকে মনে হচ্ছে, এখানটা একটা মকা দেবে, একটা পারফেক্ট ক্যান্ডেল স্টিক দেখলেই নিতে পারিস, আমাকে লাগছে এটা। মানে যারা আগে নিস নি লং টার্মে পারিস, যার ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি আমি লিঙ্ক শেয়ার করবো, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলে নিবে। আচ্ছা চলো ক্লাস স্টার্ট করি একটু, আজকে একটু ইজি টপিকই স্টার্ট করি, কাল থেকে আবার ডেরিভেটিভ টপিক গুলো নেব। TCS টা একটু দেখো, TCS টা। টিসিএস টা দেখি দাঁড়া, টিসিএস আজকে একটু এইসব ডিসকাশনই করে নি, অনেকদিন মার্কেটটাই ভুলে গেছিলাম। টিসিএস কত চলছে? 3247। ওই যে একটু বেড়ে আবার কমে এসছে প্রত্যেকটা আইটি স্টক। হ্যাঁ আইটি স্টক পড়েছে, বুঝতে পারছি কিছু তো একটা হয়েছে, আমি খেয়াল করিনি তো ব্যাপারগুলো, আর কিছু ভালো লাগছিল না, দেখ খবরও পড়তে, মানে পেপার পড়তেও যেন শরীরে কষ্ট, শোয়া যায় না, বসা যায়, এমন একটা প্রবলেম। কিন্তু স্যার টিসিএস এর তো একটা শুনেছিলেন, মানে দেখেও ছিলেন যে ওদের একটা বাজেট এসেছিল মোটামুটি, মানে ওরা কিছু একটা অর্ডার পেয়েছিল 15 কোটি টাকা কিছু একটা অর্ডার এসেছিল, তখন আবার হাই হলো কিন্তু তারপর আবার ডাউন হয়ে গেল। ঠিক আছে, মানে কিছু তো আইটি স্টকে মনে হচ্ছে সবেতেই একটু ডাউনফল গেছে লাস্ট 4-5 দিনে। আচ্ছা, হ্যাঁ ওদের বল, জন্য কেউ কিছু বলছে, কেউ একটা কিছু বলছে, তথা কিছু বলছিস? আই থিঙ্ক তথা বা কারোর একটা মনে হলো। স্যার জার্মানি রিসেশনে চলে গেছে, ইউএসএও তাই অবস্থা, তাই আইটি গুলো ডাউন যাচ্ছে। ও আচ্ছা, জার্মান আর ইউএসএ তে রিসেশন আছে, তথার কাছে খবর আছে। ভালো মক্কা দিয়েছে আবার, নেওয়া যায়, বুঝেছিস? একটু খেয়াল কর, একটু ক্যান্ডেল গুলো খেয়াল কর, আর এটা সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সটাও খেয়াল কর। বিশ্ব আবার একটা মক্কা তৈরি হচ্ছে, দেখ এই দেখ এই প্যাটার্নটা খেয়াল করিস, হ্যাঁ? যতটা जितना उठा था ठीक उतना ही गिर रहा है ऑलमोस्ट। आई थिंक 3000 लेवल तक जा सकता है, डोंट नो, क्योंकि मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अभी होगा क्या, क्योंकि मैं काफी दिनों से इसका देखा नहीं। तुम लोग इसको ना थोड़ा फॉलो करो, कुछ तो तुम लोग को समझने को मिलेगा कि आईटी स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है, कुछ तो आइडिया मिल जाए। मुझे मिलेगा ना खबर, मैं बता दूंगा, तो मैं मोटा मोटी अभी धीरे धीरे खबर रखना स्टार्ट करूंगा। बट यस विश्व, एक मौका बन रहा है बाइंग का। विश्व বুঝতে পারলি কথাটা? একটা ভালো হ্যাঁ। বাইং, একটা ভালো বাইং সিচুয়েশনস তৈরি হচ্ছে। অল্প অল্প করে বাই করবো নাকি? ना अरे একটু दाঁড়িয়ে দেখে जा ना, और थोड़ा सा देख ले, अह, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है, मे बी अगर 3200 के रेंज के आसपास मिले तो और अच्छा ना, 3200 में मौका मिले या इसमें मौका मिले तो और बढ़िया रहेगा। देखें और कितना करेक्शन करेगा, थोड़ा और देख, मतलब मे बी कैंडल देगा अभी का करंट जो डे का कैंडल्स है, डे का कैंडल करेंटली कुछ ऐसे बता नहीं रहा है, ठीक है? ये क्या बन रहा था, ये डाउन में, ये क्या था, इसको क्या बोलेंगे? पुलिस हरामी, हाँ क्या इसको हरामी बोल सकते हैं हम लोग? अरे क्या हरामी बोल सकते हैं उसको? क्या तुम लोग आइडेंटिफिकेशन करना भी भूल गए क्या? दिस वन क्या बना था ये? राइट ट्रेंड, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में হারাম। पुलिस हरामी ना, लेकिन उसके बाद হ্যাঁ, हाँ, बट बुलिश हरामी परफेक्टली नहीं हुआ। इसके पीछे देखिए और एक रीजन होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, पैटर्न वन जो है ना, ये पैटर्न वन ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर रहा है। आप लोग को एक चीज याद होगा, मैंने सिखाया था बेसिक्स टेक्निकल के स्टार्टिंग में ही, कि अगर किसी पर्टिकुलर कैंडल में अगर टू मच वॉल्यूम होता है ना, टू मच वॉल्यूम, तो टू मच वॉल्यूम को ना इग्नोर करना चाहिए, याद करना सर। मतलब
बहुत छोटा कैंडल, बहुत छोटा कैंडल और बहुत बड़ा कैंडल इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। मतलब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए मतलब अब बना है हरामी, एक मौका शायद बन रहा है, तुम लोग थोड़ा सा इसको देखते रहो। उसके बाद एक क्या बना, मारूबूजू तो नहीं लग रहा है मुझे, नॉर्मल कैंडल एक बना है, एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, बट फिर भी चांसेस इज हाई, चांसेस है कि ये वापस एक बाइंग जोन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। फिर मैं कुछ दिन में देखूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बाइंग जोन में भी बन रहा है, और अगर बनेगा तो फिर एक शॉर्ट टर्म गेन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ाई में वापस आते हैं, धीरे धीरे फिर से आप लोग भी कनेक्टेड हो जाओगे और मेरा भी आइडिया ओपन हो जाएगा। काफी दिनों से दिमाग पूरा बंद है। अच्छा अच्छा, टेक्निकल पे क्या चल रहा था क्लास पे, याद है आप लोगों को? किसी को? टेक्निकल एनालिसिस में मैं क्या सिखा रहा था? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुका था, कैंडलस्टिक सारा मैंने रिसेंटली कवर अप कर दिया था, वॉल्यूम के बारे में आइडिया दे दिया था। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अगर वो ठीक से ये सब क्लास एक बार सुन लेना, और इवन जिनको पता है उनके लिए भी बोलूंगा, जो कुछ तो जानते हैं और जो कुछ नहीं जानते, सभी के लिए बहुत फायदे का जगह है सर। एंड करेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट मूविंग एवरेज, जो मैंने लास्ट वीक एक ही क्लास हुआ था और उसके बाद से मेरा थोड़ा सा स्टॉपेज लग गया था। अच्छा, तो मूविंग एवरेज में ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये बेसिकली मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो आपको टारगेट को फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है। सीरियस, हल्का से मत लो सर, टॉपिक इजी है, बट ये टारगेट फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है। ज्यादातर लोग ना टारगेट फिक्स करने में चिंता पड़ जाता है कि आखिर बाई कब करें, सेल कब करें। ठीक है, अगर आप शॉर्ट सेल करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट सेल करोगे देन बाई करोगे। और अगर आप एक लॉन्ग, लॉन्ग बने क्या, लॉन्ग बने दो तरह का ही ट्रेड होता है ना सर, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट सेल माने क्या होता है सर? शॉर्ट माने पहले सेल करना बाद में बाई करना, ये भी पॉसिबल है, और आपको पता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बहुत अच्छा मौका देता है। सेम डे मार्केट में मैंने इंट्राडे मार्केट में भी मौका मिलता है शॉर्ट सेलिंग। पहले सेल करो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, तब शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको लगता है कि नीचे नीचे गिरेगा, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। और लॉन्ग नॉर्मली जैसे अभी मैं टीसीएस में बता रहा था, या फिर रिसेंटली सिम्फोनी में आप लोगों ने देखा, आईटी स्टॉक में आप लोगों ने रिसेंट गेन किया, पेटीएम में मैं आप लोगों को बोला था, पेटीएम आई थिंक मूव किया है, मुझे भाई बता रहा था, भाई ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, मतलब ट्रेड किया, तो वही बता रहा था। तो पेटीएम में फिर आपका और भी काफी सारे स्टॉक है, अदानी का तो मैं क्या बताऊं सर, छोड़ो। तो बेसिकली जहां आपको बाइंग जोन, पहले बाइंग करना है फिर बाद में सेल करना है। तो सर कुछ भी करो, दो लेग ऑलवेज होता है, या तो सेल करके बाई करो या तो बाई करके सेल करो। लेकिन मजा का बात ये है सर कि ये जो मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ये चीज को समझाने में बहुत हेल्प करेगा कि आखिर आप किस एरिया में जाके अपना टारगेट को फिक्स करोगे या फिर बाई करोगे कि नहीं करोगे। चलो मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करता हूँ, मेरा भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा चाहिए सर, स्टार्टअप चाहिए, पिकअप चाहिए, और आप लोगों का भी रिकॉल हो जाएगा। हाँ बोलो। জেএসডব্লিউ স্টিল স্যার লাস্ট এক উইকেও ভালো প্রফিটেবল সিচুয়েশন তৈরি করে। टीटा टीटा बोल, जेएसडब्ल्यू, জেএসডব্লিউ স্টিল স্টিল जेएसडब्ल्यू स्टील, हाँ जेएसडब्ल्यू स्टील বলেছিলি নাকি ট্রেড জেএসডব্লিউ স্টিল? না স্যার দেখছিলাম ওদের মানে খুব গ্রোথ কম ছিল, কিন্তু লাস্ট এক সপ্তাহে একটু ভালোই এগিয়েছে, এখন আজকেও ভালো প্লাস हाँ, डिफरेंट सेक्टर है मार्केट में, समझ रहे हैं ना सर? मार्केट में डिफरेंट सेक्टर है, हर सेक्टर में अगर तुम लोग धीरे धीरे अपना ये फंडामेंटल जब आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे ना। জোম্যাটো हाँ बोलो। জোম্যাটো লাস্ট যে সপ্তাহে আগে স্যার 64-62 ছিল, 75 হয়ে গেছে। मार्केट मूवमेंट है, आज मार्केट मूवमेंट में है ना, तो अभी बहुत सारे स्टॉक को भी तुम्हें गेन मिलेगा। हाँ जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छा मौका दिया,
चलो वेरी गुड, ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेगा सर। बट अगर आप एक दो में भी फोकस करके अपना काम करोगे ना तो भी आप बन जाओगे सर। जरूरी थोड़ी है कि आप 7,000 स्टॉक है मार्केट में। मार्केट में 7,000 स्टॉक लिस्टेड है। 5,000 बीएसई में, तो 2 से 2,500 एनएसई में। तुम इतना 7,000 स्टॉक तुम रेगुलर एनालिसिस थोड़ी कर पाओगे। रेगुलर क्या, तो जिंदगी भर में नहीं कर पाओ। अगर कोई 40-50 स्टॉक सेक्टर वाइज अगर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पोर्टफोलियो बना के भी अगर सोचता है, मैं सिखाऊंगा ये सब चीजें जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ाऊंगा ना। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करने को सिखाते हैं। मतलब बेसिकली आप कौन से सेक्टर को किस तरह से देखोगे, मतलब इस लाइक का म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे काम करते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होते हैं ना, वो एक्चुअली इसी तरह से करते हैं। आप एक साथ सारे सेक्टर थोड़ी देख सकते हैं सर। इसको थीम बोलते हैं, थीमेटिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं सिखाऊंगा आगे आगे जब फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, या म्यूचुअल फंड पढ़ोगे तब भी आप ये सब हल्का आइडिया मिलेगा। वैसे म्यूचुअल फंड तो स्टॉक के बारे में बात नहीं करता है, बट वो इस तरह से स्टॉक को शॉर्टलिस्टेड करता है, ठीक है। तो एक साथ 7,000 स्टॉक के बारे में सोचना एक अलग ही लेवल का रिसर्च होता है सर, ठीक है। मतलब आप कम से कम 40-50 स्टॉक में भी अपना कंसंट्रेशन रखोगे ना, तो भी आप बहुत कुछ कर लो। 40-50 भी ज्यादा बोल दिया, 40-50 भी ज्यादा हो गया। 40-50 कंपनी मैंने 40-50 किताब क्योंकि आप सोचो एक बार कि आप जिस कंपनी में आप ट्रेड करोगे, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें आप अपना पैसा लगाओगे, तो सोचो कि उसके बारे में आपको जानना है कि नहीं जानना। हम लोग नॉर्मली स्कूल में 5-7 सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। 8 पेपर होते हैं सीएम में, उसी में स्टूडेंट पागल हो जाते हैं सीएस में। तो सोचो जब आप 40-50 कंपनीज में ट्रेड करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका सब्जेक्ट लेवल कितना बढ़ गया। और वो भी अगर अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कोई ऑटोमोबाइल से होगा, कोई स्टील से होगा, मतलब मेटल से होगा, कोई कोई एनर्जी से होगा, कोई आईटी से होगा। हाँ, तो सोचो कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन कितना डेवलप करना पड़ेगा। ये जस्ट मैं आइडिया दे रहा था। ओके चलो ठीक है सर। जिस टॉपिक पे हम लोग टेक्निकली लास्ट क्लास को कंप्लीट किए थे, मैं उसी से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। मूविंग एवरेज मैं बोल दिया था, मूविंग एवरेज क्या है। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ एक बार, क्योंकि मूविंग एवरेज को अगर रिकॉल एक बार, जो लोग याद है जिनको बहुत अच्छा है सर, जिनको याद नहीं है, एक्चुअली मुझे याद नहीं है प्रॉपरली कि मैं क्या पढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट सर कि यहाँ पर ना एक क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज है। इसमें आपको ना बहुत मौका मिलता है। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम। ये एक टेक्निक है जिसको आप यहाँ से भी जिस तरह से फॉर एग्जांपल में अगर मैं इन्फोसिस में या सिम्फोनी में भी दिखाऊँ, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलेगा। एमए क्रॉस दिख रहा है सर, मूविंग एवरेज क्रॉस, या फिर ईएमए क्रॉस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस, या फिर एमए विथ ईएमए क्रॉस। दिखाई दिया आप लोगों को? देखो तो स्क्रीन में कुछ दिखाई दिया? अरे দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে কিছু? হ্যাঁ अब ये जो एमए क्रॉस और ईएमए क्रॉस है, ये एक्चुअली मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट से आपको बहुत हेल्प करता है कि आगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये जो दो लाइन देख रहे हैं सर, एक ग्रीन है और एक रेड है, इसको रीड करना जानना चाहिए, ठीक है। इसको रीड करना जानना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये इसको ना शॉर्टकट में नहीं करूंगा सर, इसको आपको मैं लॉन्ग कट में ही समझाऊंगा, ठीक है। कि आखिर ये जो दो लाइन यहाँ पर आप सिम्फोनी में देख पा रहे हो, ठीक है। एक एक लाइन देखो सिम्फोनी में, ये कितना दिन का है? 9 एंड 26 का है, ठीक है। 9 और 26 का है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि किस तरह से ये आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डे को चेंज भी कर सकते हो आप। यहाँ पर जाके आप नंबर ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग कैंडल दोनों को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको क्या बोलते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो लेकिन सबसे पहले ये समझना है सर कि आखिर ये जो दो लाइन आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों लाइन से आप क्या मार्केट के बारे में, चाहे आपका वो कोई निफ्टी वगैरह हो या सेंसेक्स हो या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक, उसमें ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या क्रॉसओवर मूविंग एवरेज ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सर कैसे हेल्प करेगा, यही चीज आपको थोड़ा समझाना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कौन सा था,
बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम का था, ये आपका हाँ भारत पेट्रोलियम का था। तो इस तरह से ये एकदम ओरिजिनल है, जिस तरह से अभी मैं आपको वहां पर ड्रॉ करके दिखाया, आप भी खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये लाइन आपको क्या सिखाता है, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको ना शॉर्टकट नहीं सर, थोड़ा सा धीरे धीरे ही मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक बार मूविंग एवरेज याद दिलाता हूँ, फिर मैं एक्सपोनेंशियल में आता हूँ, ठीक है। एक बार चलो सर रिकॉल हो जाए फटाफट। तो बेसिकली मूविंग एवरेज के बारे में एक रफ आइडिया तो आप लोगों को मिल ही गया था कि मूविंग एवरेज क्या बताता है सर, हर चीज का एवरेज हमें क्या बताता है। एक क्लास में जब बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, तब भी आपको एवरेज सिखाया जाता था, है ना, कि एक क्लास के अंदर 50 बच्चा है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 50 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट निकालो, ठीक है। तो कोई 6 फुट का है तो कोई 4 फुट का है, तो फिर अगर एक बंदा 6 फीट का है, एक बंदा 4 फीट का है, ठीक है, तो टोटल हो गया 10। अगर दो बच्चे में एवरेज करने बोले तो आप क्या निकाल दिए कि 5 फीट एवरेज हाइट है स्कूल का, ठीक है, बच्चे लोगों का। तो पॉइंट इज दैट कि किसी भी चीज का एवरेज आपको एक रफ आइडिया क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये पांच बंदा मिलके, दोस्त मिलके बीच साइड में बेवरेज ले रहा था, हो सकता है कोई सॉफ्ट या हार्ड बेवरेज जो भी हो बॉटल। तो यहाँ पर एक बंदा वहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए गया था। यहाँ पे स्टोरी क्या था सर, 5 people are sitting on a nice sunny beach enjoying a nice chilled bottle beverage. Sun is so bright and nice that each of them end up drinking several bottles. तो बहुत सारे बेवरेज इन लोगों ने ड्रिंक कर लिया था। तो आपको यहाँ पर ड्रिंक क्या किया था वो नहीं समझाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि एवरेज क्या है। Assume the final count to be something, तो क्या फाइनल काउंट आया था, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन मिला था, ठीक है। ध्यान से देखो सर, ये छोटा छोटा चीज आपको बड़ा बनाता है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस, ये मैं लास्ट दिन बोला था मुझे याद है, पर फिर भी मैं थोड़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा रिकॉल हो जाए, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा, ये बेसिक्स मूविंग एवरेज है, तो इसके बाद मैं आपको क्रॉस ओवर में लेके जाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई कहाँ से आ गए अचानक से। तो आप अगर देखोगे स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस में ये मूविंग एवरेज को, पहले आप एवरेज क्या है वो देखते। यहाँ पर 4 पर्सन है, पर्सन ए बी सी डी। पर्सन ए जो है ये 7 बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स लिया है, ठीक है। पर्सन बी जो है ये 5, पर्सन सी 6 और पर्सन डी 3, कुल मिला के और कितना लोग है, 5 बंदा है ना, हाँ 5 बंदा। और 5th पर्सन जो है उन्होंने 8 बॉटल लिया, कुल मिला के 29 बॉटल कंज्यूम हुआ है। ध्यान से सुनना सर, ना टोटल 5 दोस्त मिलके 29 बॉटल का कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब आप समझ सकते हो ये कोल्ड ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स बहुत कुछ हो सकता है। बीच साइड में कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है सर आजकल, सर मैं तो पीता हूँ अगर कभी मौका मिलता है। अच्छा, assume a 6 person works in find out 29 bottles of beverages lying around them. अब जो बंदा उसको ऑब्जर्व करने गया है वो क्विकली एक रफ सेंस उठा रहा है वहां से, क्या कर रहा है, सिंपल एवरेज बना रहा है कि एक पर्सन ने कितना बॉटल पिया। तो उसने फटाफट एक सिंपल कैलकुलेशन किया, 29 बॉटल 5 फ्रेंड मिलके पिया है, तो एक एक बंदा ने 5.8 बॉटल्स पर हेड पिया है। तो इसमें तो कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा सर एवरेज कैलकुलेशन, है ना, एकदम छोटा बच्चा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एवरेज कैलकुलेशन। लेकिन आपको ये समझना है सर, इस एवरेज के साथ स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज का क्या कनेक्शन है। बहुत सिंपल कनेक्शन है, बट समझो सर बात। So average in this case tells us roughly how many bottles each person had consumed. Obviously there would be few of them जिसमें हो सकता है किसी ने ज्यादा पी लिया हो, है ना। एवरेज 5.8 है, एवरेज 5.8 है, लेकिन हो सकता है किसी ने ज्यादा पिया हो सकता है किसी ने कम पिया हो। इसके एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है, एक इकोनॉमिक एग्जांपल देते हैं। सर आप लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हो, जानना चाहिए सर। इंडियन इकोनॉमी के बारे में ऑलवेज एक नॉलेज आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट जो इकोनॉमी का मिरर होता है ना सर। स्टॉक मार्केट इज द मिरर ऑफ आवर इकोनॉमी। तो आपको ना इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में एक रफ आइडिया, रफ नहीं एक अच्छा खासा आइडिया चाहिए आप। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बेसिकली जो लोग स्टॉक रिसर्च का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये सब पूछते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, तो एनआईएसएम में उसका नाम है सर अरे भूल गया, मेरा दिमाग पूरा एकदम बंद है। स्टॉक रिसर्च ही बोलते हैं, जो भी बाद में याद करेंगे ज्यादा। अब इधर देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। करेंटली इंडिया का जीडीपी रैंक देखो, वर्ल्ड में 5th है,
ये बहुत ही गुड फीलिंग्स देता है आपको, है ना। जीडीपी रैंक वाइज इंडिया नॉमिनल, मैं अभी ये सब में नहीं जाऊंगा सर, ठीक है। ये नॉमिनल क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, परचेसिंग पैरिटी, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी, मैं ये सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि इकोनॉमिक्स क्लास चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ वाइज इंडिया भी एस्टिमेटेड 2009.1 7.2 अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ो। जीडीपी पर कैपिटा सर ये कैसे मिलता है जानते हो? किसी भी, अच्छा पहला बात जीडीपी क्या है, किसी भी कंट्री में जितना कंपनी चलता है वो हर एक कंपनी, छोटा बड़ा कंपनी मिला के जो भी प्रोडक्शन करते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। तो किसी भी कंट्री में जो भी डोमेस्टिक लेवल में प्रोडक्शन चलता है उसको जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है उसे उस कंट्री का जीडीपी कहते हैं। जैसे इंडिया का जीडीपी यहाँ पर बता रहे 3.7 ट्रिलियन का इकोनॉमी है करंटली, जो वर्ल्ड में भी 5th रैंक पे। सर पर कैपिटा जीडीपी देखो आप, मैंने टोटल जो जीडीपी है इसको पर हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने एवरेज निकाला। ध्यान से सुनो बात को, ये जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, 3.7 ट्रिलियन को नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 140 करोड़ की आबादी है ना हमारे देश में, 140 करोड़ पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एग्जैक्टली। तो ऐसा करके जो एवरेज मिल रहा है सर, इंडिया का एवरेज इनकम बता रहा है $2601। सर इसको रुपी में कन्वर्ट करके बताओ ना, हेलो, $2600, इसको रुपी में कन्वर्ट करके बताओ ना आज के डेट में क्या वैल्यूएशन हो रहा है। ये एनुअल है सर, एनुअल। कोई कर रहे हो क्या? बोलो सर फटाफट बोलो, पहले तो ये देख लो कि 2 लाख। करेंटली हाँ কত হচ্ছে, তারপর বল ডলার কত চলছে, $1 इक्वल्स टू 2,40,000 कितना, डॉलर का क्या भाव नहीं आता? on 82 something 82, 2,13,282, 82.56 2,13,283। चलो मैं रफली 2 लाख मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज इनकम है 2 लाख। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया सर, आप समझ गए सर बात को, कि दुनिया के सामने भारत में लोगों का एवरेज इनकम कितना है, एवरेज एनुअल इनकम, मंथली नहीं रे बाबा, ये एनुअल इनकम है। एवरेज एनुअल इनकम कितना है, 2 लाख। सर इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इंडिया का एवरेज इनकम, लेकिन इसमें इसमें अंबानी भी है, हेलो, इस इनकम के अंबानी भी है, इस इनकम के अंदर अदानी भी है, और इस इनकम पे, ठीक है, बम्बानी माने गरीब लोग भी हैं, बीपीएल हम लोग जैसे एवरेज लोग भी हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, अंबानी अदानी सब सब इसके अंदर आ गया ना। अरे 140 करोड़ की आबादी में अदानी अंबानी भी आते हैं कि नहीं आते? हेलो, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। 140 करोड़ के पॉपुलेशन में अदानी इज ऑल्सो देयर, अंबानी इज ऑल्सो देयर, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इज ऑल्सो देयर, एवरेज पर्सन, एवरेज इनकम लोग, मिडिल क्लास हम लोग जैसे, ये लोग भी है। सो मैं कहना ये चाहता कि 140 करोड़ में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो एवरेज इनकम 2 लाख है, लेकिन इसमें अदानी अंबानी का इनकम देखो, ठीक है, लाख करोड़ों में कमाते हैं, कुछ लोग एनुअली 5 लाख 10 लाख कमाते हैं, कुछ लोग एनुअली 1 लाख भी नहीं कमाते, ऐसे लोग भी है कि 1 लाख भी एनुअली नहीं कमाते, ऐसे लोग भी। सो एवरेज से हमें क्या पता लगता है, एक रफ आइडिया मिले। आई होप कि आपको समझ में आया कि एवरेज का यूज कहाँ कहाँ होता है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं अभी इकोनॉमी में और बात नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक इकोनॉमिक का आइडिया देना था, मैं दे दिया, ठीक है। अब इसको आप चिल्ड बॉटल से समझो या फिर जीडीपी वाइज समझो। जीडीपी पर कैपिटल में इंडिया का रैंक बहुत पीछे है सर, जीडीपी पर हेड में इंडिया का रैंक बहुत पीछे है। हम लोग दुनिया में 200 कंट्रीज में से 139 में आते हैं, और यही चीज थोड़ा सा इंडिया के लिए चिंता का विषय है। जब तक ये 139 से इंडिया एटलीस्ट 50 के अंदर नहीं आता, तब तक आप सोचो कि इंडिया डेवलप नेशन नहीं बन रहा है। बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। मतलब अभी सरकार जब पॉलिटिक्स बंद करेगा और रियल ग्रोथ करेगा, ठीक है, और ज्यादा ही पॉलिटिक्स करते हैं लोग आजकल, मतलब पॉलिटिक्स माने बेकार का पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, ग्रोथ वाला पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ मारीतन पॉलिटिक्स। अच्छा देखो, तो आई थिंक एवरेज का आइडिया आपको मिल गया। अब यहाँ पर आपको मैं अभी थोड़ा लेके चलूंगा सर, अभी स्टॉक मार्केट में ये एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
इस एवरेज को यूज करके हम मार्केट में स्टॉक कैसे एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखो सर। एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स, एक आईटीसी लिमिटेड का डेटा यहाँ पर लिया गया था, ठीक है। आईटीसी तो अभी एकदम हाडू जा रहा है सर, मैं भी देख रहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं भी थोड़ा अपडेट ले रहा था, लेकिन जितना मैं एक दो देख पाया। तो एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स, आईटीसी का 5 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा यहाँ पर लिया गया। ध्यान से सुनना सर, क्योंकि अभी मैं आपको क्रॉसओवर में लेके जाऊंगा ना, तो आपको थोड़ा सा सुविधा होगा। ये देखो सर, 14 जुलाई का डेटा है, 15 जुलाई का डेटा है, 16 जुलाई का। ये डेट मायने नहीं रखता, ये 14 की जगह 23 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ठीक है। 2023 हो, 24 हो या 2014 हो, डजेंट मैटर, आप डेट देखो, ठीक है। बिकॉज जब आप डेटा को मैनेज करोगे तो आपको डेट जरूरत पड़ेगी। तो 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, इस तरह से आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस लिया गया। क्या लिया गया सर? 14 जुलाई को आईटीसी 344 में क्लोज हुआ था, 15 जुलाई को 342 में क्लोज हुआ था, 16 को 344.20 में, 17 को 344.25 में, 18 को 344 में। इस तरह से आईटीसी अगला 5 दिन में इनका टोटल बना था आईटीसी का 1179 का। ध्यान से देखो सर, 1179.75 ये टोटल करके मिला लास्ट 5 दिन का, जिसको डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, ठीक है। अब ये तो आईटीसी में था एग्जाम्पल, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ले लो ना, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक उठा लो, अदानी, अंबानी, एचटीसी, एचडीएफसी, जो पसंद, आप लास्ट 5 दिन का डेटा इस तरह से लेना है, उसको डिवाइड कर देना है जितने दिन का एवरेज है। तो यहाँ पर 5 दिन का आईटीसी का एवरेज कितना मिला सर? 343.95। कुछ नहीं सर, जस्ट जैसे जीडीपी का एवरेज हुआ, जिस तरह से आप लोग अभी चिल्ड बॉटल दोस्त लोग पी रहा था बीच साइड में, उसका एवरेज हुआ, उसी तरह से आईटीसी का भी एवरेज मिल गया। तो हेंस द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ आईटीसी 5 ट्रेडिंग सेशंस का 343.95। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा सर, इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग। ये सिंपल चीज जिंदगी में ना बहुत काम आता है, बट हम लोग ना समझते हैं कि सिंपल चीज शायद जिंदगी में कुछ काम नहीं है। हर चीज को कॉम्प्लेक्स करके सोचना इंसान का ना एक आदत बन चुका है, ठीक है। मतलब हर एक इंसान को ज्यादातर मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है हर चीज जिंदगी में कठिन है। नहीं सर, ये सिंपल चीज जिंदगी में बहुत काम आता है। अब चलो आगे बताते हैं। द मूविंग एवरेज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को ऑल्सो एसएमए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर कंसिडर a situations where you want to calculate the average closing price of Marico Limited। जैसे आईटीसी का था उसी तरह से मेरिको एक कंपनी है, इसका भी डेटा लिया गया है, ठीक है। सिमिलरली इसका भी 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का डेटा लिया गया है और टोटल किया गया है 1212.3 डिवाइडेड बाई 5। तो हमें क्या पता लग रहा है सर? 242.5, ठीक है। ये हमें मेरिको का एवरेज मिला है। सर ये सब एवरेज कैलकुलेट करके क्या होगा सर? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा फोकस रखो। अब एक चीज आप देखो, आपने एवरेज करना तो सीख लिया, अब इसमें एक वर्ड था सर, मूविंग एवरेज। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? हेलो, हाँ सर, বোঝা যাচ্ছে তো? एकदम। अब तुम लोग एक चीज ध्यान नहीं दिया शायद, हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करना तो सीख गए, बट एक वर्ड है इसमें, का नाम है मूविंग। एवरेज तो ठीक है, बट मूविंग क्यों? मतलब एवरेज मूव कर रहा है, बात को समझे सर, इसलिए नाम दिया मूविंग एवरेज। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर, एवरेज मूव कैसे कर रहा है? इसी चीज में एक्चुअल में खेल है। ये मूविंग फॉरवर्ड, इसी में मेन पॉइंट है, आपको मूविंग एवरेज समझना है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग लास्ट डेटा कब तक था? 25 तारीख को आई थिंक। यहाँ पर जो डेटा लिया गया है इसमें 25 के बाद 26 एंड 27 जो है वो सैटरडे संडे है, मैंने मार्केट का क्लोजिंग डे, ठीक है। 25 के बाद 26 एंड 27 जो है वो मार्केट का क्लोजिंग है, सैटरडे संडे। तो फिर नेक्स्ट डेट क्या आएगा सर? 25 के बाद
26 27 अगर सैटरडे संडे है तो नेक्स्ट कौन सा डेट आएगा बोलो? 28। हेलो 28 आएगा ना सर? ठीक बोल तो हाँ হ্যাঁ 28 आएगा। হ্যাঁ ओके सर, तो 28 जुलाई अब हमारा नेक्स्ट सेशन है। अब क्या करना है, अब इसी में खेल है। डिस्कार्डेड द ओल्डेस्ट डेटा, ध्यान से सुनना, डिस्कार्डेड द ओल्डेस्ट डेटा 21 जुलाई। माने ये जो पूरा टेबल बना था, इस पूरा टेबल का, ये पूरा टेबल में स्टार्टिंग डेटा था 21। ध्यान से देखो, लुक एट 22 एक सेकेंड, हाँ ये 21 है ना, 21 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद 22 से लिया गया, ठीक है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखो। तो 28 जुलाई में वी हैव न्यू डेटा पॉइंट, 26 27 को हटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डेटा पॉइंट करेंगे 22 से, 22, 23, 24, 25 एंड 28। 21 हट गया। We'll drop the data point belonging to 21st as our objective is to calculate the latest 5। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है सर, हम लोग यहाँ पर 21 जुलाई से स्टार्ट किए थे, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, ये 5 दिन का डेटा था। फिर 26 27 सैटरडे संडे पड़ गए, इन दोनों को नहीं लेना है क्योंकि कुछ डेटा तो होगा नहीं। अब 28 जुलाई जब आ गए ना सर, अब हम लोग 21 जुलाई को हटा देंगे। बात को समझे सर, अगर 21 को हटा देंगे तो नेक्स्ट 5 क्या होगा, 22 से लेकर 28, 1 2 3 4 5, माने हर बार मूव करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर जब 22 कट जाएगा तब इधर 29 आ जाएगा, इधर 23 कट जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, इधर 24 कट जाएगा, इधर 31 आ जाएगा। सर आप लोगों को बात समझ में आ गया? मूविंग फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट, मूविंग एवरेज माने लेटेस्ट 5 डेटा का डे का एवरेज चाहिए, और हर बार एक पीछे का दिन घटता है, ड्रॉप होता है, और एक न्यू डे का एडिशन होता है। ये बात क्लियर है? ये हो जाएगा सर? हाँ। अब एक्चुअली देखो, आज के डेट में ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है, लेकिन आपको एक बार पीछे का बैकग्राउंड तो जानना चाहिए कि आखिर मूविंग एवरेज के पीछे का खेल क्या है। तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट देखो 22 तारीख से, अब जो भी क्लोजिंग डेटा है उस डेटा को कोट किया गया जो मार्केट में हुआ है। इसमें ये आपके हाथ में थोड़ी, मार्केट में कौन सा डेटा पॉइंट में क्लोज होगा, दिस इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। आपके हाथ में जो है आप वो करो, ठीक है। अब 240 टका 60 पैसा में क्लोज होगा कि 241 टका 80 पैसा में क्लोज होगा, ये हमें नहीं पता, बट जो भी होगा उसके ऊपर बेस करके एवरेज कैलकुलेशन करना, मूविंग एवरेज को अंडरस्टैंड करना, ये तो समझ सकते। अब देखो लेटेस्ट डेटा पॉइंट में एवरेज पॉइंट फिर से चेंज हो गया, 22 से 28 में 244.66 हो गया, लेकिन लास्ट 5 दिन का एवरेज क्या था, 242.5। पॉइंट टू बी नोटेड, 242.5 ये लास्ट 5 दिन का था। न्यू 5 दिन का, न्यू जो लेटेस्ट 5 दिन का डेटा है वो 244.66 हो गया। मैंने एवरेज डेटा में अगर देखा जाए तो मार्केट बुलिश है, लास्ट 5 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पर the average closing price of Marico over the last 5 trading session is 244.66. As you can see, the latest data and discarded the oldest data. Latest data is 28 and discarded the 21st July. To calculate the 5-day average. On 29th, अब जब 29 तारीख आएगा, we would include 29th data and exclude 22nd data. And on 30th, we could include 30th data point but eliminate 23rd data and 23rd July का data. इस तरह से चलते जाएंगे और मूविंग एवरेज बनाते जाएंगे, इसी तरह से मूव ऑन करते जाएंगे और मूविंग एवरेज बनाते जाएंगे। ये मेन फंडा है। सो एसेंशियली वी आर मूविंग टू द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कार्डिंग द ओल्डेस्ट कैलकुलेट। तो इसीलिए नाम पड़ा है मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज है इसके एग्जैक्ट रीजन ये है। अब सेम एग्जांपल भी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई बोलेगा सर हम लोग क्लोजिंग नहीं, हम लोग ओपनिंग से करेंगे, कर सकते हो, कोई ओपनिंग क्यों, हाई प्राइस में भी करो, लो प्राइस में करो, ओपनिंग प्राइस में करो, डजंट मैटर। बट मार्केट क्लोजिंग प्राइस को सबसे सैक्रेड मानता है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस को सबसे सैक्रेड मानता है।
हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात भी करते हैं ना, हमेशा बोलते हैं इतने दाम में क्लोज हुआ है, फिर न्यू दाम के बारे में सोचते हैं। The closing price are used mostly by the traders and investors and it reflects the price at which market finally settled down. Because इसी दाम पे मार्केट सेटल डाउन होते हैं, इसलिए क्लोजिंग प्राइस को यूज करना मार्केट का एक प्रैक्टिस है और इसको सबसे सैक्रेड भी माना जाता है, ठीक है, प्योर माना जाता है। क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज तो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, लेकिन क्लोजिंग में क्या है, नेक्स्ट दिन एक न्यू शुरुआत, इसीलिए, ठीक है। मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनी टाइम फ्रेम, चाहे आप मिनट का डेटा ले लो, आवर ले लो, ईयर का डेटा ले लो, एनी टाइम फ्रेम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम चार्टिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। जो भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, चाहे जो भी डेटा प्लेटफॉर्म, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, कोई भी ले लो सर, सब अच्छे हैं, ग्रो, मोतीलाल, सब अच्छे, ठीक है। हाँ, डिपेंड करते हैं, किसी का ब्रोकरेज थोड़ा हाई है, किसी का ब्रोकरेज थोड़ा लो है, ठीक है, बट हर कंपनी मोटा मोटी अच्छा ही देता है। हाँ, सबका सॉफ्टवेयर बेहतर नहीं है, ये मैं जरूर बोलूंगा, किसी किसी का सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर होता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, इट्स अ गुड इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, नो डाउट। अच्छा, अब एक चीज आप देखो, अब जो डेटा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए, सेम चीज को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज तो आप लोग जानते ही हो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर नहीं जानते तो प्लीज एक्सेल को डेवलप करो, बहुत काम करेगा जिंदगी में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का बात है सर, है ना, हर कोई आजकल बच्चा लोग क्लास 10 के बाद ही सीख लेते हैं। तो एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर आप मूविंग एवरेज का डेटा पॉइंट को पुट कर सकते हैं। ये सेल रेफरेंस है, जैसे कि एक्सेल में होते हैं ना सर। अब उसमें आप एक एक डेटा पॉइंट को पुट करोगे, 1 जैन का, 2 जैन का, यहाँ पर जनवरी का डेटा लिया गया था, किसी भी एक स्टॉक का है, 1287, 1279, इस तरह से पुट करोगे और ये डायरेक्टली आपका मिलेगा 5-5 दिन का डेटा पॉइंट, और फिर उसको एवरेज करना, ठीक है, फिर उसको एवरेज करना है। अब आप अगर इस चीज को समझना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना, सेल रेफरेंस में जाके सेल में क्लिक करना, जो भी सेल रेफरेंस होगा उसको यहाँ पर डी से डिनोट, आप अपना डेट देना, ठीक है, कि ये 1 जनवरी को स्टॉक का दाम 1287 था, 2 जनवरी को 1279 था, 3 जनवरी को ये था। अब इस तरह से आप 5-5 करके डेटा पॉइंट को पुट करना। जैसे यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आता है, बहुत सिंपल है। ये डेटा पॉइंट 1, डेटा पॉइंट 2, 3, 4, 5, 5 दिन का डेटा हो गया ना सर। अब इस 5 दिन का टोटल होगा, फिर टोटल करके आप उसको डिवाइड बाई 5 करोगे, तो सिंपल बात है, D8 के जो सेल होगा ना सर, इसमें आप लास्ट 5 दिन का एवरेज पॉइंट को टोटल करके एवरेज करोगे, और इसका फॉर्मूला आप एक्सेल में पुट करोगे ना, एक्सेल में फॉर्मूला का एक सीट होता है, आप एक बार होता है, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बार होता है, वहां पर जाके आप अगर ये दिखा देता है एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे होता है, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। जिनको आता है वो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एक सेकंड, एक्सेल का न्यू डेटा शीट चाहिए। ये होता है ना सर ऐसा, अरे सबको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? हेलो, সবাই দেখতে পাচ্ছে माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ये देखो सर, ये सब क्या है सर, एक एक सेल है ना, तो आपको क्या बताया जा रहा है सर, आप इस तरह से हर सेल में, एक एक सेल में डेट पुट करो, ठीक है, इस तरह से लेके ये 5 दिन का डेटा को, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, फिर भी देखते हैं जाएगा, तो हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर ये सब भी आ गया, आप घर पे कर सकते हैं, वेरी इजी थिंग, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको बस यही कह रहा हूँ कि आप क्या करना है, डेट पुट करना, ठीक है, डेट पुट करना और प्राइस पुट करना, और ये जो फॉर्मूला जो है ना सर, जैसे मानो कि तुमको यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको इक्वल देना है, इक्वल देके एवरेज लिखना है, दिखाई दे रहा है सर एवरेज, ठीक है, ये देखो
एवरेज लिख के फॉर्मूला पुट करना, मतलब जो फॉर्मूला पुट माने जो सेल सेल सिलेक्ट करना है। ये देखो P2 सिलेक्ट हो गया, P3 सिलेक्ट हो गया, इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर इसी तरह से किया। इक्वल देना, एवरेज लिखने से ही एवरेज ले लेगा, और फिर जो दो सेल का एवरेज करना है, ठीक है, जैसे D3 एंड D7, ठीक है, D3 से लेके D7 का एवरेज चाहिए आपको, तो D3 सिलेक्ट करना है और इधर D7 सिलेक्ट करना है, तो D3:D7 इक्वल्स एवरेज देके D3:D7 करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली एवरेज करके दिखा देगा कि लास्ट 5 दिन का एवरेज पॉइंट क्या है। समझ में आया सर? হ্যালো, ব্যাপারটা বোঝা গেছে কিভাবে এভারেজটা করব মাইক্রোসফট এক্সেলে? हेलो, हाँ सर। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डेटा पॉइंट को अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होने से ही, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक नॉलेज होने से ही कर सकते हो। और जिनको फॉर्मूला का नॉलेज नहीं था, मैं उनको बता दिया कि आप कंप्यूटर में इक्वल्स एवरेज देके जो भी सेल चूज करना है, सेल को चूज करके आप करोगे तो हो जाए। लेकिन हाँ, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होने से ही आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी डेटा पॉइंट को भी सिमिलरली पुट करके हर दिन का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे D9 में नेक्स्ट 5 दिन का, फिर D10 में नेक्स्ट 5 दिन का, इस तरह से आप मूविंग एवरेज डेटा पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा डेटा पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। सो इससे क्या पता लगेगा सर, जैसे आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना सीख गए, मूविंग एवरेज चेंजेस एज एंड व्हेन द क्लोजिंग प्राइस चेंजेस। मूविंग एवरेज चेंज होता है क्योंकि डेली लेवल में क्लोजिंग प्राइस अगर चेंज होता है। मूविंग एवरेज एज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड अ सिंपल मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज मैंने अभी आपको दिखाया, कैलकुलेशन सिखाया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे पुट करना है दिखाया, इसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। अब क्योंकि हम लोग लेटेस्ट 5-5 दिन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको 5 डे से में कहेंगे, क्या कहेंगे सर? 5 डे। आप चाहो तो 5 डे की जगह 10 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सब ले सकते हो। क्या करना है, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा ना, वहां पर जाओ, मैं इसको कटता हूँ अभी। जस्ट आपको इंडिकेटर में जाना है, ऐसे में लिखना है स्मूथ मूविंग एवरेज, दिख रहा है सर? ठीक है, स्मूथ मूविंग एवरेज अभी हो गया स्मूथ मूविंग एवरेज। आप किसी किसी जगह में अलग अलग लिखा रहता है। ये देखो 7 डे का दिया है, आप चाहो तो इसको 7 की जगह 10 ले लो, 15 ले लो, 50 ले लो, जैसे आपका जरूरत, जितना दूर का सोचोगे उस हिसाब से लेना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म करोगे तो कम डेटा पॉइंट, लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट, इट्स डिपेंड ऑन दी कि कैसा ट्रेड सेटअप बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको डेटा पॉइंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ना पॉइंट इज दैट सर, ये जो कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप 5 दिन को 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन अपने अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि सर इस डेटा पॉइंट से मार्केट को कैसे अजम्पशन करें। सर मैं तो आपको बताया नहीं अभी तक ना, मैंने अभी तक मार्केट अजम्पशन नहीं बताया, मैं तो आपको इतना देर से मूविंग एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ। द एवरेज फॉर दी 5 डे आर देन जॉइंट और फॉर्म ए स्मूथ कर्विंग लाइन, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है, स्मूथ कार्विंग लाइन। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव एज टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय चलता जाएगा ये भी प्रोग्रेस होता जाएगा। सर यहाँ पर जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था ड्रॉ करके लाइव मार्केट, सिमिलरली ये भी लाइव मार्केट में ही लिया गया और फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया गया, ये एसीसी सीमेंट का। अब इस लाइन को देखो, ठीक जैसे मैंने अभी आपको लाइव में दिखा रहा था, इस तरह से इंडिकेटर में जाके यहाँ पर मैं ऐसे में लिखा और मुझे यहाँ पर स्मूथ मूविंग एवरेज दिखा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर कौन से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक जगह में ज्यादा कंसंट्रेट कर दूं, तो आप देख सकते हो कि ठीक ठीक जिस तरह का लाइन आपको यहाँ नजर आ रहा है, वैसा ही लाइन आपको यहाँ भी नजर आ रहा है सर? हेलो, नजर आ रहा है आपको? कंसंट्रेटेड लाइन मतलब ओवरऑल कैंडल के ऊपर से एक लाइन एकदम यहाँ से लेके लाइन मार्केट में भी आप देख सकते हो कि দেখা যাচ্ছে সবাইকে? কি রে, बोलो सर थोड़ा
दिखाई दे रहा है हाँ क्या? सर देखो लेकिन सर सिर्फ लाइन देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, इस लाइन के पीछे की कहानी है। कहानी ये है कि ये लाइन कब कहाँ से मूव कर रहा है, दैट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट। ये लाइन कहाँ से मूव कर रहा है, ऐसे देखोगे तो जस्ट एक कार्विंग लाइन बना है, इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइन कहाँ से गुजर रहा है। समझ रहे सर, लाइन कहाँ से गुजर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर, अब आप थोड़ा सा देखो कि लाइन कहाँ से गुजर रहा है, इससे भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ना मैं इसको एसीसी सीमेंट से समझा देता हूँ, क्या है आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। फिर आप किसी भी स्टॉक में इसको देखो, ठीक है, सिम्फोनी में देख लो, जहां मर्जी देख लो, JSW में देख लो। अब ये एसीसी सीमेंट जिस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट लिया गया तब सिंपल मूविंग एवरेज बता रहा था 1102, लेकिन मार्केट उस टाइम पे चल रहा था 1133। 1133 में मार्केट चल रहा था यहाँ पर करंट लेवल में, और इसका मूविंग एवरेज था 1102। समझ रहे सर, और मार्केट उस टाइम पे था 1133.35। सर इट्स अ बिग थिंग, ये जो छोटा सा डेटा पॉइंट है ना, बहुत बड़ी बात है सर। करंट मार्केट कहाँ है और मूविंग एवरेज का लाइन कहाँ, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे मार्केट कहाँ जा सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट ये वेरी सिंपल थिंग बहुत काम का है, बहुत काम का चीज है। सो व्हाट डज अ मूविंग एवरेज इंडिकेट एंड हाउ डज वन यूज इट। मूविंग एवरेज इंडिकेट क्या करता है और इसको यूज कैसे करें। बहुत सारे एप्लीकेशन है मूविंग एवरेज का, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और भी आगे आगे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पर कितना भी एडवांस लेवल आप यूज कर लो, अगर आपका बेसिक लेवल स्ट्रांग नहीं होगा तो आप दिक्कत में पड़ेंगे। मतलब एडवांस लेवल जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको EMA बोलते हैं। रियल लाइफ में लोग ऐसे में नहीं देखता है सर, इन रियलिटी, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग ऐसे में नहीं देखते, हम लोग EMA देखते हैं, सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाऊँगा, इंडिकेटर दिखा से ही, मतलब इंडिकेटर में जाके आपको दिखा के ही मैं इसको समझाने का कोशिश करूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आ गया बेसिक लेवल में, अब बस एप्लीकेशन पार्ट में ध्यान देता। अब यहाँ पर अगेन एक डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट किस कंपनी का है पता नहीं, बट आप देखो 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, 5 दिन का डेटा पॉइंट है। इसका टोटल हो रहा है सर 1214.5। इसको एवरेज करके हमें मिलेगा डिवाइडेड बाई 5 करके। So when one calculate the average across these number, there is an unstated assumption. Unstated माने जो बोला नहीं जाता, हम लोग assume कर लेते हैं। We are essentially giving each data point equal importance. Point to be noted sir. सर बहुत एक important बात कहने जा रहा हूँ, अंदर की बात है, ध्यान से समझना। जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कुछ अनस्टेटेड एजम्पशंस होते हैं। अनस्टेटेड माने कुछ बोलता नहीं है बट हम एज्यूम करते हैं। We are essentially giving each data point equal importance. मैंने 28 जुलाई का भी जितना इंपॉर्टेंट देते हैं, 23 जुलाई का भी उतना ही इंपॉर्टेंट देते हैं, या 22 का भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। However, when it comes to market, जब ये मार्केट में जब ये बात होता है, ये बात इतना सही नहीं है। It may not always be true. मैंने फॉर द नॉर्मल कैलकुलेशन पर्पस 22 जुलाई का डेटा जितना इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई का डेटा जितना इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई का डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट मार्केट के लिए मैटर इज नॉट लाइक दैट, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। द बेसिक assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ध्यान से बात को समझिएगा सर, एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे सोचो, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है पार्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम है ना। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये बात मैंने आप लोगों को टेक्निकल के एकदम स्टार्टिंग पार्ट में बता दी। मार्केट हर चीज को डिस्काउंट का मतलब मैंने क्या है, जो आपको मार्केट दिखाते हैं, ठीक है, जो मार्केट आपको दिखाते हैं
जो सबसे लेटेस्ट होते हैं उसी को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, और मार्केट जो कुछ भी सिखाते हैं दिखाते हैं रियल मतलब प्रेजेंट मार्केट में, अब यही मान के चलो कि वो सही है, मार्केट जो दिखा रहे हैं वो सही है, ठीक है। अब मार्केट डिस्काउंट दिस मींस लेटेस्ट प्राइस्ड, बेसिकली डिस्काउंट एवरीथिंग माने जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट है, डिस्काउंट्स ऑल द नोन एंड अननोन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट में जो है सारे नोन और अननोन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए मार्केट का करंट सिचुएशंस बना। इसका मतलब है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, चाहे मार्केट करंट लेवल में डाउन में जाए, चाहे मार्केट करंट लेवल में अप हो जाए, ठीक है। जैसे निफ्टी का अगर मैं बात करूं, निफ्टी करेंटली मूव किया है, इसके पीछे वेरियस रीजंस आप लोगों ने भी पता किया। तो व्हाट एवर बी दी सिचुएशंस इन द मार्केट, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो सिम्फोनी जैसा स्टॉक हो, व्हाट एवर यू करेंटली सी जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली नोन एज वेल एज अननोन इंफॉर्मेशन के कारण ही है। बात को समझे, कुछ कारण है जो नोन है कि हाँ यही रीजन है जिसके कारण मार्केट बढ़ा है, बट बहुत सारे टाइम तो हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर बढ़ा तो क्यों बढ़ा। तो देयर मे बी सम अननोन रीजन ऑल्सो। तो मार्केट में नोन रीजन भी होते हैं, मार्केट में अननोन रीजन भी होते हैं, पर ये नोन अननोन मिलके ही, ये नोन अननोन मिलके ही मार्केट आपको एक करंट सिचुएशंस दिखाते हैं। जैसे करंटली सिम्फोनी 887 में है, ये मार्केट का नोन अननोन मिला के सिचुएशन है। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट। ये चीज मैंने पहले भी बताया कि मार्केट जो कुछ भी आपको प्रेजेंट लेवल में शो करते हैं वो हर नोन अननोन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ही आपको शो करते हैं। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट प्राइस ऑफ, इसका मतलब ये भी होता है सर, प्राइस ऑन 28 इज मोर सैक्रेड देन द प्राइस ऑफ 25th इन रियल लाइफ। इन रियलिटी जो पॉइंट जितना लेटेस्ट में मिलता है वो ज्यादा सैक्रेड है, वो ज्यादा सैक्रेड है, ज्यादा प्योर है। माने कहना ये चाहते हैं कि हो सकता है कि कभी मार्केट 950 में था, मैं बेसिकली मैं सिम्फोनी में बता रहा हूँ, सिम्फोनी एक समय में 950 में भी चला हो, सिम्फोनी कभी 900 992 कभी 1000 में भी चला गया। रिसेंट ट्रेंड में देखो तो कभी 850 में था, अभी देखो तो 878 में है। तो वट एवर बी द करंट प्राइस दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रीवियस प्राइस। बात समझ में आ रहा है? लेटेस्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप किसी को निफ्टी सोचना है वो ऐसे सोचेगा कि निफ्टी कुछ दिन पहले 18,000 में था तो फिर से 18,000 होगा, ऐसे सोचना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि निफ्टी अभी, अब बात को समझिए सर, एक ट्रेडर का या इन्वेस्टर का मेंटेलिटी कैसे काम करना चाहिए। मेंटेलिटी ये होना चाहिए ना कि मार्केट अभी 8755 में है, ठीक है, तो मार्केट यहां से किधर जाएगा, दैट इज द मच मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ये नहीं कि मार्केट कुछ दिन पहले 18,500 में था तो फिर क्या होगा, यानी प्रीवियस डेटा पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट मार्केट पॉइंट। हेलो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया सर? इसको मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप में भी आपको बता सकता, मैंने आपका करंट सिचुएशंस, आप माने खुद को सोचो, थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप आज कहाँ हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आप कल कहाँ थे। हो सकता है कि आपका प्रीवियस सिचुएशंस आज से बेहतर था, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका प्रीवियस सिचुएशंस आज से खराब था, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस में आप कहाँ जाओगे ये डिपेंड करता है कि आज आप कहाँ हो। सो योर प्रेजेंट सिचुएशंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर पास्ट सिचुएशंस, जो आपका फ्यूचर को डिनोट करेगा। ऑब्वियसली पास्ट इज इम्पोर्टेंट, पास्ट इज इम्पोर्टेंट, but present is much more important. Present is sacred, much more pure. इस पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर। मैं ये नहीं कहता कि पास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पास्ट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन प्रेजेंट, एंड उसी पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या हो। क्या सर इस बात पे दम है, क्या लगता है आपको? ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का खेल है, क्या इस पॉइंट पे दम लग रहा है आप लोग?
बहुत बार हम लोग इस तरह से भी सोचते हैं, जानते हो। जो लोग थोड़ा कच्चा खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे सोचते हैं, अरे देख कहाँ गिर गया था, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। कच्चा खिलाड़ी होता है ना, कच्चा खिलाड़ी मैंने बेसिकली जो थोड़ा इमेच्योर लेवल में होते हैं मार्केट में, उनका ऐसा सोच होते हैं, देख कहाँ गिर गया था, 17,000 पे, अगर फिर से 17,000 में आ गया तो। लैक ऑफ नॉलेज सर, जो लोगों को ना गुमराह करता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को दिग्भ्रष्ट करता है। उनको लगता है कि अगर फिर से गिर जाए तो, अरे भाई ऐसे थोड़ी गिरता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि फिर से गिर के वहीं पर आ जाएगा, हो भी सकता है, बट इट्स टेक टाइम, और अगर कुछ रीजन हो तभी होगा। निफ्टी वापस 17,000 में होगा, आएगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ कारण होगा, अदरवाइज निफ्टी क्यों 17,000 में आएगा। अगर कोई प्रॉपर, ऐसा नहीं कि अचानक से आ रहा है, ऐसे थोड़ी होगा कि आज हो गया कल एकदम ऐसा ही करो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब हो सकता है, बट इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन। मतलब जो क्या बोलो, जैसे अदानी में हुआ था, वेरी यूनिक सिचुएशन। सो आप लोग इस चीज में फोकस करो कि जो सबसे लेटेस्ट डेटा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एवरेज पॉइंट में हम लोग हर पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, बट एक्सपोनेंशियल में जो ज्यादा लेटेस्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। अगर इस बात को समझ में आया ना, वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज टू डेटा पॉइंट्स। अब इसको, इसमें क्या करना है आपको, हर डेटा पॉइंट में वेटेज देना है। क्या देना है सर? वेटेज। दैट इज न्यूनेस ऑफ द डेटा। सर व्हाट इज न्यूनेस ऑफ द डेटा? The data point on 28 July gives the highest weightage. तो 28 जुलाई ज्यादा प्योर है ना, as per our example. As per our example, हम लोग जो डेटा पॉइंट लिए थे उसमें 28 सबसे लेटेस्ट है, तो 28 को जो इंपॉर्टेंस मिलेगा, जो वेटेज मिलेगा, 25 को उतना नहीं मिलेगा। 28 के पीछे कौन है? 25, तो उसको नेक्स्ट वेटेज मिलेगा। 24 को उसके बाद थर्ड हाईएस्ट, एंड इस तरह से। मतलब जो जितना पुराना होगा उसका वेटेज लेवल कम हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस लेवल कम हो जाएगा। ये मैथमेटिकली असाइन किया जाता है। By doing so, I have essentially scaled the data points according to its newness. माने बेसिकली आप इतना सोचो, जो डेटा जितना नया है वो ज्यादा वेट लेता है, और जो डेटा जितना पुराना है वो थोड़ा कम वेट लेता है। सो लेटेस्ट डेटा पॉइंट में मैक्सिमम अटेंशन, ओल्डेस्ट डेटा पॉइंट में लीस्ट अटेंशन, इतना समझ लो आप। अब इसके ऊपर बेस करके जो एवरेज पॉइंट निकलेगा, इसे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज नहीं सर, इसे हम लोग EMA कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। जिनको, अच्छा किसी किसी को ऐसा हो सकता है, उनको वेटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है सर। ये ना एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जा। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हो उनको ना वेटेज कैलकुलेशन में बहुत सिखाता हूँ, स्पेशली इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से काम करता है। मैं सिंपल एक आइडिया दे सकता हूँ, जो लोग फाइनेंस का क्लास नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें भी जानने का अधिकार तो है। बट देखो सर, हर चीज़ का एक डिटेल्स होता है। जैसे मानो कि एक कंपनी के पास एक सिंपल शेयर कैपिटल एग्जांपल ले सकते हैं। एक कंपनी के पास मानो 1 करोड़ है, ठीक है। 1 करोड़ को, कंपनी कुछ इस तरह से है, 1 करोड़, इसमें 60 लाख का लोन है, लोन कैपिटल, और 40 लाख का ओन कैपिटल। सर ओन कैपिटल माने होती है इक्विटी, और लोन माने जो लोन लिया गया है। तो बेसिकली ये 6:4 माने कितना कितना सर हुआ सर? प्रोपोर्शनेटली इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3:2 है ना, 3:2 ना, 2:3, हाँ 3:2, ठीक ही किया सर। तो अगर अगर कोई आपको पूछे कि इसमें आपका किस चीज का वेटेज ज्यादा है, लोन का वेटेज ज्यादा है कि इक्विटी का वेटेज ज्यादा है? कंपनी का जो कैपिटल है 1 करोड़ का, उसमें इक्विटी का वेटेज ज्यादा है कि लोन का वेटेज ज्यादा है? प्लीज टेल मी। लोन है, लोन। समझ रहे सर? इस तरह से वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी जो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल बजटिंग ये सब पढ़ते हो, डिविडेंड डिसीजंस वगैरह पढ़ते हो ना, ये सब फाइनेंस में पढ़ा जाता है सर। काफी लोग आप में से जो लोग हैं जो CA CS पढ़ते हो, वो तो पढ़ता ही है। जो CA CS नहीं पढ़ता वो भी पढ़ता है, फॉर दी नॉलेज पर्पस, बिकॉज फाइनेंस को समझना है
तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत हेल्प करती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इम्पोर्टेंट। कि कंपनी किस तरह से अपना पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पूरा आइडिया मिलता है कि भाई कहाँ से पैसा जुगाड़ कर रहा है, कहाँ पैसा लगा रहा है। इसमें आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा बिजनेस के बारे में। ठीक है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ना जस्ट वेटेज समझाने के लिए हमको बोला कि वेटेज किधर ज्यादा देना है। तो अभी आपको ना और ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, अब एप्लीकेशंस में आना। तो बेसिकली मूविंग एवरेज क्या है यू नो। अब एक्सपोनेंशियल भी क्या है वो भी आपको पता चल गया। लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज्यादा अहमियत देना है, ओल्ड डेटा पॉइंट को कम अहमियत देना, वेटेज कम जाएगा। अब एप्लीकेशंस पार्ट में आ गए। सिप्ला का चार्ट है सर, एग्जैक्टली लाइव मार्केट से स्क्रीनशॉट लिया गया है। फोकस करो क्या है सर। यहाँ पर एक 50 दिन का एसएमए माने सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको ब्लैक लाइन से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर एक ईएमए भी है जो रेड लाइन से डिनोट किया गया है। ध्यान से देखना सर, इसी में पूरा खेल छुपा हुआ है। अब ये तो आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप प्लॉट कर सकते हो। ईएमए एज वेल एज एसएमए। ईएमए माने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए माने सिंपल मूविंग एवरेज। और कितना दिन का है सर? 50 दिन। आप चाहो तो अपने हिसाब से 50 को 100, 200, 500 जो करना है कर सकते हो। You can notice that EMA is more reactive to the price and it sticks closer to the price. Point to be noted, sir. हेलो सर, इसमें एसएमए और ईएमए के अंदर करेंट प्राइस के आसपास कौन है? करेंट प्राइस 460 चल रहा था जब ये डेटा लिया गया था। डेटा लेटेस्ट प्राइस 460.2 था जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि एसएमए और ईएमए लाइन के अंदर व्हिच इज मोर रिएक्टिव टू करेंट प्राइस? कौन आसपास में है? एसएमए है कि ईएमए? क्लोज टू करेंट प्राइस? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप उसने पाली की पाली ना क्यों? EMA line is close to current price or SMA line is close to current price? EMA. That is a simple question. EMA is much more reactive to current price, and that is the reason EMA को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है SMA से। समझ रहे हैं सर? अब ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ और पॉइंट समझ लो फिर मैं आपको ड्रॉ दिखाता हूँ। Sir, EMA is quicker to react to current price is because EMA gives more importance to most recent data points. SMA तो हर पॉइंट को सिमिलर मानता है, बट EMA लेटेस्ट पॉइंट को ज्यादा अहमियत देता है। दिस हेल्प्स द ट्रेडर। अब आपको ना EMA के अंदर किस तरह से वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वो आपको चार्ट से समझ में आता है। तो ट्रेडर को क्विक डिसीजंस में ज्यादा हेल्प करते हैं EMA। Hence for this reason trader prefer to use the EMA over SMA. सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ मूविंग एवरेज। अब हम लोग एप्लीकेशंस में काम करेंगे। मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज विद इट्स ओन मेरिट। ओन मेरिट माने उसका अपना एक बुद्धि है, उसी बुद्धि को यूज करना है। When the stock price trades above its average price, अगर स्टॉक का दाम एवरेज से ज्यादा है, it means that traders are willing to buy the stock at a price higher than its average price. This means the traders are optimistic about the stock price going higher. Therefore, should look at buying opportunity. बात को समझे, इस पॉइंट में बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है। 4 लाइन के अंदर मार्केट का बहुत बड़ा एनालिसिस छुपा है। मूविंग एवरेज आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है when the stock price trades above its average price. एवरेज प्राइस से अगर आपका करेंट प्राइस ज्यादा है, इसका माने ये होता है traders are willing to buy the stock at a price higher than its average price. This means the traders are optimistic about the stock, माने bullish, and इसीलिए आपको buying opportunities मिल रहा है। Likewise, उल्टा, when stock price trades below the average price,
It means traders are willing to sell the stock at a price lesser than its average price. This means the traders are pessimistic about the stock price movement. Therefore, one should look at selling opportunities. आप लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल चलता है ना सर, कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए? उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का जवाब आपको यहाँ मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि ये आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बताते हैं। एंट्री माने बाई करना, माने नॉट जस्ट बाई, माने आप शॉर्ट सेलर हो तो आप पहले सेल करोगे ना। अगर आप एक शॉर्ट सेलर बनोगे पहले सेल करोगे, बाद में बाई करोगे। तो बेसिकली एंट्री माने बाई और सेल दोनों हो सकता है, एग्जिट माने भी बाई सेल दोनों हो सकता है। इस बात को समझे, एंट्री बाई से भी हो सकता है, एंट्री सेल से भी हो सकता है, बट पॉइंट इज दैट एंट्री करेगी ना करे, और पॉइंट इज दैट कि एग्जिट करेगी ना करे। We'll try and define one such trading system based on 50-day EMA. 50 दिन का EMA से हम लोग इसको सीखेंगे। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिमेंबर, एक चीज रिमेंबर, एक गुड ट्रेडिंग सिस्टम गिव्स यू सिग्नल टू एंटर अ ट्रेडिंग एंड सिग्नल टू क्लोज आउट द ट्रेड। अगर आपको अच्छे से सिग्नल समझ में आता है ना, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प। रूल 1, बाय व्हेन द मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 डे EMA। अगर 50 दिन के EMA से मार्केट प्राइस ज्यादा जा रहा है, आप मार्केट के साथ ज्यादा लंबा जा सकते हो, यानी मार्केट अभी एक्चुअली बुलिश हो, और तब तक आप स्टे करना, तब तक स्टे करना जब तक सेल कंडीशन जनरेट नहीं हो। एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस। रूल 2, लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करना माने स्क्वायर ऑफ करना, यानी आपने बाई किया था ना, अब सेल करके निकलना है। सेकंड लेग, 2 लेग होता है ना, अगर फर्स्ट लेग में बाई करोगे तो सेकंड लेग में सेल करोगे, उल्टा भी हो सकता है। When current market price turns lesser than the 50-day EMA, तो सेल करके निकल जाओ। अब यहाँ पर एक चार्ट है, आपको रियल एग्जांपल समझाने में, और फिर मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। अंबुजा सीमेंट, इसमें भी मैं आपको बोला था सर, इसका क्या सिचुएशन है। अंबुजा अभी किसका है सर? अंबुजा अभी कौन सी कंपनी का है? अदानी ने की। हाँ सर, ऑब्वियसली। और इसमें बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, मैं इसके बारे में भी ग्रुप में बताया था शायद। इवन मैं जब से बोला तब से मार्केट ग्रोथ ही दे दिया है। आप लोग देखना, मैं ग्रुप में बोला था अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट कहाँ है? 460 नहीं 449। मैंने शायद इसके बारे में बोला था जब मार्केट 400 के आसपास चल रहा था। अब देखना 400 415 के आसपास, इसका लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, मतलब 1 साल के लिए अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। लेकिन सर मैं अभी उसमें बात नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं यहाँ पर बोला था, इस एरिया में आई थिंक मैंने बोला था May 23 24, वही लास्ट वीक जब क्लास खत्म हुआ था, मतलब मेरे बॉक्स होने से पहले। अच्छा, मैं भी इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि अंबुजा सीमेंट का एक पुराना डेटा पॉइंट, चलो मैं यहाँ से सीखता हूँ, फिर वहां से आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप इसका एप्लीकेशन से सीखो, पहले सीखो तब ना अप्लाई करोगे। तो 50 डे EMA को कैलकुलेट करना है अंबुजा सीमेंट का थ्रू EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कुछ नहीं करना है आपको ना, बस यहाँ पर जाना है इंडिकेटर में, क्लिक करना है EMA में, मैंने लिखना है, मैं सिंपल EMA लेना चाहता हूँ। कौन सा ले सर? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दिस वन। EMA क्रॉस, डबल EMA, ट्रिपल EMA, MA, मतलब मूविंग एवरेज विद EMA क्रॉस, इतना सारा नहीं लिया सर, सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आई थिंक आप सबको दिखाई दे रहा हो। तो करंट मार्केट प्राइस से एवरेज लाइन नीचे है कि ऊपर है? अच्छा, ये कितना दिन का है? 9 दिन का है। इसको चेंज करके 50 डेज का कर। हेलो, एवरेज लाइन यहाँ पर
स्ट्रिक की मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 400 कितना बता रहा है सर? 415 415 के आसपास बता रहा है। करेंट प्राइस 448 है। तो क्या करना चाहिए? मतलब मूविंग एवरेज क्या बताना चाहता है कि अगर करंट प्राइस मूविंग एवरेज से हाई है तो मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है? अरे बोलो। भूल गए सर? सब कनेक्टेड हो कि नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा। क्या कह रहा है कि बाय व्हेन द करंट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 DEM। पुलिस তাহলে आपको बाई करना चाहिए जब करंट प्राइस 50 दिन ईएमए से ज्यादा है। करंट प्राइस ज्यादा है ईएमए से। तो करेंटली मैंने जो ईएमए ड्रॉ किया, ईएमए 415 के आसपास दिखा रहा है और करंट प्राइस 448 में बता रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट इज बुलिश। मार्केट बुलिश है तो ये बाइंग सिस्टम के अंदर है अभी। अब उल्टा स्टॉक भी देख सकते हो आप, ऐसा भी आपको मिलेगा जब ये पॉइंट जो है ये नीचे है, माने ये पॉइंट ज्यादा है, ये में ऊपर है और करंट प्राइस नीचे है, तो दैट्स अ बेयरिश सिचुएशंस। तो यहाँ पर अभी इतना समझ सकते हो कि मार्केट में इसका ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है, एकदम बिल्कुल बाइंग ट्रेंड है। और मैं तो आपको पहले ही बता, इसको आप दूसरा स्टॉक में करके देखो। अच्छा मैं कोई आईटी स्टॉक में करता हूँ, चलो। हाँ बोलो बोलो। নিফটি ক্র্যাশ করে গেছে দেখুন निफ्टी क्रैश करेगा ऐसे? 70 পয়েন্ট মতো। আমি তো গ্রুপে ছবি দিলাম তো ওটা। मैं देख ही नहीं रहा ग्रुप पे, तो देख से ग्रुप में देख ही नहीं रहा। अच्छा ये देखो सर, हाँ ठीक है, निफ्टी को कम इधर उधर होगा वो, थोड़ा सा जिन लोगों को प्रॉफिट करना है वो बुक करेगा ना। अच्छा सिम्फोनी में अगर अगर मैं देखना चाहूँ, तो पहले तो ये में लेना चाहिए मुझे, इसको कट करता हूँ, इंडिकेटर में जाता हूँ, ये में लेता हूँ एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाके इसको 50 कर देता हूँ। देखो तो क्या बता रहा है, 50 दिन के हिसाब से अगर देखो तो इसका सिम्फोनी का मूविंग एवरेज यहाँ है और करंट प्राइस यहाँ है 50 डे के हिसाब से। अब आप बोलोगे सर तो फिर आपने इसको बाई करने क्यों बोला था? सर ये एक्चुअली अभी अपने सपोर्ट लेवल के पास है, इसके पीछे अलग रीजन था, इसके पीछे अलग रीजन था। लेकिन आप इसको समझो कि मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, 50 दिन मूविंग एवरेज सपोर्ट नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म और थोड़ा लेते हैं इसको, 50 दिन की जगह इसको अगर मैं 9 दिन कर लूँ, हाँ आप समझ रहे बात आपको कि मैंने इसको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में रखा था। দেখা যাচ্ছে? देखो सर करंट प्राइस 883 और मूविंग एवरेज कहाँ है? 868 एंड इसीलिए बुलिशनेस था, मतलब अभी भी है। कोई चाहो तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन रख सकते हो अभी ये थोड़ा सा, अभी ये बहुत मौका देगा, बढ़ेगा सर। अगर मार्केट में पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी गर्मी का सीजन है ना सर, ये रहेगा, ठंड के टाइम पे इसको सेल कर देना, क्योंकि सिम्फनी कूलर बेचता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो समझ में आ रहा है मूविंग एवरेज को कैसे देखना है, टाइम फ्रेम को कैसे चूज करना है, कि आप किस समय के लिए देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, उसमें डिपेंड करता है। तो ये सिम्फोनी अभी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मौका दे रहा था। अब आप आईटी स्टॉक में देखो,
आईटी स्टॉक में देखो, आप किसी भी स्टॉक में देखो, इन्फोसिस में आप देखो, इन्फोसिस में 9 दिन का ईएमए क्या बता रहा है, 9 दिन में बुलिश है। अगर अब इसको मैं चेंज करके 50 डे कर दूं, 50 डे के हिसाब से भी मार्केट बुलिश है, और ये तो है ही, 50 डे के हिसाब से भी मार्केट बुलिश है, वो तो है ही। तो इसका ट्रेंड है सर। जो लोग पहले मिस किए थे ना इस पॉइंट पे, जब मैं बोला था आईटी स्टॉक लेने के लिए, किसी ने नहीं लिया था, फिर से मौका बना है सर। बाद में ना बोलना सर आपने कुछ बोला नहीं, मैं बोलता हूँ जब तब आप लोग सुनते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो सर मौका चला गया। ओके सर, इसमें कुछ और भी चीजें हैं समझने लायक, ध्यान से सुनो। देखो सर, ये एक लंबा समय का चार्ट है, 50 दिन का। कब कब बाइंग बना है देखो, ये देखो 165 में बाइंग बना था, 169 में बाइंग बना था मूविंग एवरेज के हिसाब से। यहाँ पर बाइंग बना था 165 में वापस, बट बहुत दिन बाद। सर इसे इग्नोर करने बोल रहा है, ये इग्नोर पॉइंट है। ये देखो बहुत लंबा कैंडल है ना, और ये कैंडल इग्नोर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि करंट प्राइस जो है वो नीचे है, ठीक है, करंट प्राइस ऊपर है मार्केट प्राइस से, इसलिए इसको इग्नोर करने बोला। और ये सब सेल जोन बना है सर, ये सब सेलिंग जोन है, मैंने सेल करके निकल जाओ, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन नीचे है करंट प्राइस से। मूविंग एवरेज लाइन नीचे है, जहां जहां मूविंग एवरेज ऊपर है आप नीचे हो, आप बाई करो। जहां जहां मूविंग एवरेज नीचे है करंट प्राइस से, तब सेल कर दो अगर होल्डिंग में हो तो। इसलिए देखो ये S1 S2 S3 ये भी सेल जोन बना हुआ था यहाँ पर। ये देखो मूविंग एवरेज यहाँ है, आपका करंट प्राइस उससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सेल बना था 215 में। और उसके बाद एक्चुअली मार्केट गिरा था, उसके बाद ही देखो मार्केट गिरा है। सर आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम लेफ्ट में आप देखा, जब 165 था तब बाइंग जाना, माने बेसिकली आपका मूविंग एवरेज लाइन हायर देन योर करंट प्राइस। 50 डे ये में 50 दिन के एक्सपोनेंशियल से ज्यादा है, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रहा था। ऐसे ही लॉन्ग फ्रेश पोजीशंस आप देखो तो अगर आपको मिल जाए ना, आप बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट में देखो, जैसे सेल 187 में आप 22% का प्रॉफिट करोगे। यहाँ पर 165 में बाई किए थे ना, हेलो, 165 में बाई करके कब तक होल्ड करना है? जैसे ही आपने देखा, जैसे ही आपने देखा 50 दिन ईएमए के हिसाब से कि आपका एवरेज लाइन करंट प्राइस से नीचे चला गया, माने आप समझ लो कि सेल चालू हो चुका है। तो ये जो गेन आपको हुआ है ना, 22% प्रॉफिट हुआ है पर शेयर में, निकल जाओ। इस तरह से चेक करना है। हेलो, बात समझ में आ रहा है? एवरेज लाइन का मूवमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो सर बोलो, आ रहा है तो भी बोलो, ना आ रहा है तो भी बोलो, कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। जैसे सिम्फोनी में आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म मौका मिला है ना, मैं इसको 9 दिन के एक्सपोनेंशियल में बता रहा था। ठीक है, तो 9 दिन के एक्सपोनेंशियल के हिसाब से अगर आप देखो तो अभी भी इसमें आप स्टे कर सकते हो, अभी भी इसमें आप स्टे कर सकते हो। ठीक है, अभी भी इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है सर कितना, 866। तो आपका बाइंग कब बना था? इस पॉइंट में बाइंग बना था 855, 850 55 में बाइंग बना था। तो अभी आपने कितना प्रॉफिट कर लिया? 30 रुपीज के समथिंग प्रॉफिट हो गया आपका। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हो,
लेकिन अगर आप चाहो तो स्टे भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी सिचुएशंस आपके साथ है, अभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ देखना है। अगर देखोगे कि मार्केट का मतलब ट्रेंड बदल रहा है तो निकल जाओ, एवरेज लाइन का ट्रेंड बदल रहा है तो निकल सकते हो। इस तरह से देखना है मार्केट को, इस तरह से देखना है। तो अगर आप यहाँ पर अंबुजा सीमेंट का जो सिचुएशन था, यहाँ पर देखो आप कितना अलग अलग मौका मिला आपको। 165 में बाय करके 187 में सेल किया, 22% गेन, 13% रिटर्न हुआ आपको। 178 में वापस आपको बाई था, 182 में 4% गेन था, ज्यादा नहीं था। 165 में बाय, 215 में सेल, 30% का रिटर्न हुआ है, 50% का गेन हुआ था। ये वाला सिचुएशंस को आपको इग्नोर करने बोला गया था 178 को यहाँ पर, बिकॉज ये सिचुएशंस परफेक्टली सिचुएशंस रेडी नहीं हो रहा था, ये इग्नोरेंस सिचुएशंस था। बट बेस्ट सिचुएशंस था कि आप यहाँ पर 165 में बाय करके यहाँ पर होल्ड करते तो 50% आपका प्रॉफिट, या फिर आप 178 में भी आप अगर एक फिर से बाय करते तो भी आपका एक प्रॉफिट सिचुएशन। तो अब इस तरह से चार्ट को एनालिसिस करो, मूविंग एवरेज लाइन को एनालिसिस करो, आपको कब एंटर करना है और कब निकलना है आपको समझ में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्रॉसओवर बताऊंगा, जो आपको और प्रोमिनेंट जवाब देगा। क्रॉसओवर में आपको और प्रोमिनेंट जवाब मिलेगा कि आपको कब एंटर करना है और कब निकलना है। बात समझ में आ रहा है ना सर? आज इतना ही रखूंगा सर। बहुत दिन बाद स्टार्ट किया, अच्छा लगा आज पढ़ा के बहुत दिन बाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर, पहले जैसा ही। ठीक हो जाए अच्छे तो सवाई के। ठीक है सर, स्टॉक एनालिसिस फिर से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को अगर कुछ भी सजेशन देना है मैं ग्रुप में भी बताऊंगा, क्लास में भी बताता रहूंगा। कल सर डेरिवेटिव का क्लास करेंगे, ठीक है? দা বলছি টিসিএস বেটার হবে না ইনফোসিস? দুটোই ভালো, মানে এখন দুটোই ভালো, দুটোই ভালো। যদি যে কোনো একটা চুজ করতে চাস, আমি ইনফোসিসের সাথে একটু বেশি পছন্দ করি। হ্যাঁ স্যার, কারণ স্যার টিসিএস যা ভ্যালু আছে ইনফোসিস নিলে তার দুখানা শেয়ার হয়ে যাবে সেই টাকাতে, দুটো কি আর তিনখানা হয়ে যাবে। আমি ইনফোসিসে এই জন্য বেশি প্রেফার করি বিকজ আমি ইনফোসিসে অলওয়েজ গেইন করি, সেই জন্য আমি ইনফোসিসকে একটু ইমোশনালি বলতে পারি সে একটু। ইনফোসিস ভালো মৌকা দেয়। ঠিক আছে, আজ এতটাই রাখি, কাল থেকে আবার বাকি চর্চা করবো। कल डेरिवेटिव होगा सर। हाँ ओके सर, बाय फिर। ঠিক আছে বাই স্যার। बाय सर, बाय सर। बाय सर। হোয়াটসঅ্যাপে দেখে নিন একবার। व्हाट्सएप पे